last class we studied what are the initial considerations of payroll management, right? Initial considerations of payroll management, what does it mean? It means that what is required, what are the basic things which are required for a payroll department of an organization to calculate the salary. Okay, now I explained you the points. Today we will start with compensation management. Salary structure is a part of compensation management. So you need to understand what is compensation management. Okay, what is compensation? Compensation management means the various direct and indirect, remember, various direct and indirect payments or benefits which are given to the employees. And make you right. Okay, don't worry. Just listen to the lecture first and then I'll make you right. Various direct and indirect payments which are made to the employees in lieu of, means in exchange of, the services which they render to the organization. What do we contribute to the organization? Services. What do we get paid for? Our services. So an organization pays us for the services that the employees render to the organization. The contribution of services that we render to the organization. Compensation management is the most important thing for any organization in various respects. It's not just about giving salary and then taking services from the organization. There are various factors why compensation management is very important. Management, jahan word aaya, just keep this in your mind that it is going to be a process which needs a lot of attention. Compensation management is very important both for the employees, because you want to join the organization, you will always be interested in the salaries and benefits that you get from the organization, and from the employer's point of view also. There are various aspects to why compensation management is important. It is said that an employee goes by what the organization pays rather than what the organization says. ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है उससे ज्यादा एम्प्लॉइज इस चीज का ध्यान रखते हैं, इस चीज पे फोकस करते हैं कि वो क्या पे करती है, because at the end of the day salary is going to be one biggest motivating factor for you to join any organization and vice versa, right? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? सैलरी देखते हैं कि सैलरी कैसी है, पेमेंट्स कैसा है, वेरियस बेनिफिट्स कैसा है, सब चीज पढ़ाई गई है, अलाउंस बेनिफिट्स सबके अंदर उसी के अंदर आता है। तो आप देखते हैं, आप ध्यान देते हैं। प्लस why is compensation management so important from an employer's point of view? Because what an organization pays rather than what it says. Also from an employer's point of view, उसकी organization का compensation package जो उसने बनाया है, हमने क्यों कहा बनाया है? क्योंकि हम अभी प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं. For government most of the things are fixed, right? For organizations it is defined by the government and you cannot do anything which is not in compliance with the government rules. But for private organizations they have the liberty to design their compensation package. वो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए किसी एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी designing of compensation package is very important. Why? There are many reasons for this. One most important reason is you have to commemorate your salary according to the service you are taking. It is only then the organizations will be joined by skilled people. अगर आप किसी skilled job के लिए hire कर रहे हैं and you are not paying them appropriately, will they join your organization?
No, they'll prefer some other organization. They'll not join your organization. And even if they join, they'll soon be leaving your organization. Even if they join, they'll soon be searching out for better options with the organization, outside the organization. The other thing is that salary given to the employees, जब salary employees को दी जाती है, this is the major cost borne by any organization. जो कैपिटल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका बहुत बड़ा प्रोपोर्शन एम्प्लॉयज के सैलरी में जाता है. ठीक है, ऐसी आप लोगों को नहीं पढ़ना है केस स्टडी, लेकिन ऐसी केस स्टडीज हमने देखी है जहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन पूरी ठप पड़ गई, बंद हो गई, इसलिए क्योंकि दे वेंट ऑन मेकिंग लॉसेस एंड दे केप्ट ऑन गिविंग सैलरी. ठीक है, तो ये सब जो सैलरी कट वगैरह होती है फॉर मोस्ट बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, ये जरूरी हो जाती है कि अगर आप प्रॉफिट इनकम नहीं कर रहे. कोविड में देखा होगा कि जनरली कंपनीज कट करके दी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कट कर दी. तो अभी जुलाई में गवर्नमेंट ने डीए बढ़ाया है 17% टू 28%. अदरवाइज वर्क्स एंड अलाउंसेस कट हुआ था. ठीक है, a major salary, a major part of money goes in giving salary to the organization, employees of the organization. इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर है. अगर आपने सैलरी बहुत कम दी तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे. दैट शुड बी एट पार विद द सिमिलर पोस्ट्स इन मार्केट, राइट? और अगर आपने बहुत ज्यादा दी तो आपके कंपनी के ब्लॉक बुक में कॉस्ट आएगा और वो कॉस्ट आपको डुबा देगा. जरूरत से ज्यादा अगर आपने सैलरी दी तो वो डुबा देगा. इसीलिए कॉम्पेंसेशन पैकेज को जब बनाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब कॉम्पेंसेशन पैकेज को बनाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरीके से बनाया जाता है. देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज दैट गोज इनटू मेकिंग और डिजाइनिंग द कॉम्पेंसेशन पैकेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जो सैलरी आपको मिल रही है वो तो मिल ही रही है, 50,000 एम्प्लॉइज को सैलरी मिल रही है, प्लस पीएफ का पैसा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉयर है आपकी वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आधा आधा दिया जाता है. आपका भी पीएफ का पैसा कब कटता है 12%, और एम्प्लॉयर भी 12% पीएफ फंड में जमा करते हैं. तो वो तो 12% उनको पे करना है हर एम्प्लॉय के लिए. ग्रेचुटी देनी है 5 साल बाद हर एम्प्लॉय के लिए. ईएसआई कटवाना है हर एम्प्लॉय के लिए. तो इस तरीके से उनका काफी खर्च होता है. इसीलिए कॉम्पेंसेशन पैकेज शुड बी वेरी लॉजिकली डिजाइन्ड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सब कुछ आता है. बेस पे आता है, अलाउंसेस आता है, बेनिफिट्स आता है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन आता है, एवरीथिंग, ट्रेनिंग आती है, डेवलपमेंट, एवरीथिंग. ठीक है, there are other activities also which are undertaken by the organizations, like वो अगर आपको ट्रेनिंग पे भेज रही है, they will spend on it. Training is a cost borne by the organization. आपको ट्रेन करने में उनका बहुत रिसोर्सेस खर्च होता है. वो ट्रेनर बुलाएंगे, ट्रेनर को पैसा देंगे. ये डिटरमिन करना है कि अगर छोटे लेवल की ट्रेनिंग है तो ट्रेनर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ही सीनियर एग्जीक्यूटिव से लिया जा सकता है क्या, या फिर किसी नए स्किल की ट्रेनिंग देनी है एंड द ट्रेनर इज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू हायर हिम फ्रॉम आउटसाइड एंड देन इट विल बी अ कॉस्ट गिवन टू हिम, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजों का काम चलता रहता है जिसमें कि उनका पैसा लगता है, और उसमें एक मेजर पार्ट क्योंकि सैलरी में जाती है. इसीलिए डिजाइनिंग ऑफ प्रॉपर कॉम्पेंसेशन पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, I will teach you in internal equity and external equity that how compensation packages are designed and what factors are kept in mind to design compensation package. Write down few things so that you have a written record of it. Right. Compensation is defined as
Compensation is defined as various direct and indirect ways of various direct and indirect ways of paying to the employees paying to the employees for their services rendered to the organization. For their services rendered to the organization. For their services rendered to the organization. It is important both at national and international level for the organization. It is important both at national and international level for the organization. It is a major HR tool It is a major HR tool to manage the employees. No, it is important both at national and international level for the organization. You write down, I'll explain the points. Yes, say. बोलो. मैम इट इज अ मेजर एचआर टूल के बाद It is a major HR इट इज tool अ मेजर to manage their employees. To manage their employees. To manage their employees. It is a major way to link It is a major way to link compensation with general goals and strategy. Compensation with general goals and strategy. General goals and strategy and with HR strategy. And with HR strategy. Done? It is an organized practice It is an organized practice which involves balancing the work-employee relation by providing various monetary and non-monetary benefits. By providing various monetary and non-monetary benefits.
None writing? Right now. Importance of compensation management. Importance of compensation management. Point number 1. Positive control on the competence of workers. Positive control on the competence of workers. Bolo? Positive control on the competence of workers. Second point, minimizes labor turnover. Minimizes labor turnover. Third, it motivates employees. It motivates employees. It results in good industrial relations. It results in good industrial relations. And last point, it leads to higher employee satisfaction. It leads to higher employee satisfaction. Okay. Thank you, let me. क्या points लिखा? I'll explain that. First point. Compensation नहीं है, competence of workers है. Competence. अच्छा technique. If you know that you will be paid according to your skills, according to the kind of input you're putting in the organization, will you have this motivation to keep your competency high? मतलब आप और काम करें और मन लगा करके काम करें, आप और बेहतर परफॉर्मेंस दें, because you are commemorated with the salary structure, है ना? अगर सैलरी आपको उस बराबर मिलेगी जो जितना लेबर आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिग्री आपने होल्ड की है, जितने स्किल्ड आप हैं, तो will it not have a positive control on the competence of workers? अगर एम्प्लॉयर आपको उतना पैसा ना दे, say for example they hire an MBA and they are giving salary to equivalent to a what a 12th pass gets, will he be willing to put his input in the organization? No, उसको मन नहीं करेगा, उसको लगेगा कि ये सैलरी मेरे स्किल के बराबर नहीं है, he will not be willing. So ये एक positive control है, ना? Good compensation package is like a positive control on the competence of workers. आप अपनी competency को हमेशा enhance करने में एक अच्छा compensation package help करता है. आपको लगेगा कि अगर मैं अपना skill enhance करूं और मेहनत करूं तो there are future growth prospects, मैं grow कर सकता, तो आपको ये motivation रहेगा और मेहनत करने की, है ना? Next point. Labor turnover. What is turnover? See, you understand, you might not be knowing the technical word, but you know this. Turnover, employees switching the companies, एक company को छोड़ के दूसरे company जाते हैं. Turnover, labor turnover is a major problem today.
एचआर को आज की कंपनीज में, क्योंकि देखिए एमएनसीज के आने के बाद, एमएनसीज के आने के बाद, इंडिया में ऑपरेट करने के बाद क्या होता है कि ये इंडियन कंपनीज को भी और फॉरेन कंपनीज को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि कि एम्प्लॉयज आते हैं, ज्वाइन करते हैं और वो स्किल सीखते हैं, 2 साल 3 साल काम करते हैं एंड दे स्विच ऑन टू अदर कंपनीज। तो ऐसे में बहुत कॉस्ट और रिसोर्सेज कंपनी का बर्बाद होता है किसी भी एम्प्लॉय पे। आईटी कंपनीज को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा आईटी कंपनीज में, क्योंकि आईटी इज बूमिंग राइट नाउ। जैसे अभी एलएनटी में रिक्रूटमेंट आया था, they gave very high package to the experienced people, so obviously they will be switching from one company to another, है ना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेबर टर्नओवर का। जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब जनरली लोग नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उनको कोई और बेहतर ऑप्शन ना मिल जाए। गवर्नमेंट की भी नौकरी लोग छोड़ते हैं, में आए तो यूपीएससी की तैयारी की, फिर उसको छोड़ दिया, फिर यूपीएससी में तक हुआ तो है, या फिर आप कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, हमारे ऑपरेट करती इंडियन कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, एंड दिस इज द लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। इट ऑपरेट्स विद 8 सब्सिडियरीज इन 8 डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो वहाँ क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग है which is a post, which is the पोस्ट फॉर E2 कैडर, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो फॉर जनरल पब्लिक इट इज थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मैंने रिटन का एग्जाम हुआ, फिर इंटरव्यू होता है, दोनों का एग्रीगेट मार्क्स देते हैं और तब फिर उनमें सिलेक्शन होता है। बट फॉर सम क्रीम इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटीज, आईएसएम बंगाल, आईआईटी बीएचयू, इस तरह का जो क्रीम कॉलेज है, वहां से ये कैंपस इंटरव्यू लेते हैं। तो देखो IITians they are skilled people, they have a lot of skills, and उनका सैलरी कितना होता है, गवर्नमेंट की सैलरी कितनी है, 1 लाख 1.25 लाख, और वो बढ़ेगा भी उसी तरीके से धीरे धीरे। सिक्योरिटी होती है पर बहुत पैसा होता है, ऐसा तो नहीं है। तो दे लीव द जॉब, दे कम, दे जॉइन, दे वर्क फॉर 6 मंथ्स। एक तो ये लोकेशन से एकदम ऑड होती है, जहाँ माइनिंग एरिया है वहां पर होगा, और उसमें भी कोई माइनिंग इंजीनियर है तो उसको तो एकदम ही खान के काम कर पाएगा, पैसा देगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की फिक्स्ड सैलरी है उसी पे देगा। तो दे लीव द जॉब, एंड IITs they are earning 3 lakh per month, 4 lakh per month, and their growth is also like exponential। फिर उनको अब्रॉड का मिल जाएगा पैकेज। सो 30 years an IIT who is 30 years of age might be earning 5 lakh 6 lakhs per month, okay, they leave। सो ये जो वेकेंट बनता है पोजीशन, ये बहुत बड़ा लॉस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? उसने रिक्रूटमेंट निकाला, एग्जाम लिया, उतना रिसोर्सेज लगा, एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने में कितना रिसोर्सेज लगता है, उतने जगह का कंप्यूटर सेट करना, स्ट्रीमलाइन करना, उसके बाद उतने इन्विजिलेटर्स तैयार करना, राइट, उतने इन्विजिलेटर्स तैयार करना, और इस तरीके का जब एग्जाम होता है तो बिग ऑफिशियल्स दे आर इन्विजिलेटर्स। उसके बाद आपको हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है, हेडक्वार्टर्स में सारा अरेंज करना, जो बोर्ड है उसके एक दिन का काम हर्ज होता है उनको, ठीक है। फिर आपका सारा दिन इंटरव्यू लेना। ये गवर्नमेंट का रूल है कि जो SC STs हैं उनके लिए ट्रैवल का फेयर देता है वो, थर्ड AC का या स्लीपर का, जो भी उसका अपना प्रोविजन वो देता है। ये सब कॉस्ट है ना, आप सेलेक्ट तो नहीं हुए लेकिन आपको पैसा तो मिलेगा, तो ये सब चीज तो वो रिक्रूटमेंट का खर्च है ना उसका। एंड देन द ट्रेनिंग, फिर उसके बाद आप IISc रांची में जाएंगे, वहां आपके रहने खाने सब चीज का खर्च है, वहीं से ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी शुरू हो जाती है। एंड यू वर्क फॉर 6 months, they have trained you, they have invested so much in you, you work for 6 months and you leave the organization। तो इतना ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड का सिस्टम है। जैसे वहां पे भी 3 लाख का बॉन्ड लिया जाता है, तो 3 लाख एक साथ नहीं जमा किया जाता है, आपकी सैलरी से 5-5 हजार महीने का कटता है, and then when you have survived for 3 years they give you with simple interest। तो लेबर टर्नओवर एक मेजर प्रॉब्लम है
ऑर्गेनाइजेशन में, आईटी कंपनीज वगैरह में ज्यादा ये देखने को मिलता है। और आज के डेट में ये एक मेजर एचआर इशू है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने लोगों को रिटेन करके रखना है, जिनको हमने ट्रेन कर दिया उनको खुश रखिए ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, थ्रू वेरियस बेनिफिट्स। आगे बेनिफिट्स पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि सैलरी लमसम सेम होती है। मैंने बताया कि आप सैलरी मार्केट से बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं, उसका टेक्निकल रीजंस होता है, लेकिन आप बेनिफिट्स दे करके जो ऊपर के एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं, जो हु आर द ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको रिटेन करने की कोशिश की जाती है। यू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड हैव समथिंग टू अट्रैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप छोड़ने का सोचेंगे तो आप ये कंसिडर करेंगे कि हमारे यहाँ इतनी बेनिफिट्स मिलती है, लाइक कंपनी की कार दी जाती है, ये इसमें तो सैलरी में कहीं कोई लिखा नहीं होता है, कंपनी का अकोमोडेशन दिया जाता है। आप देखेंगे कि आईटी कंपनीज वगैरह बहुत, अमेज़न वगैरह का बहुत सारा कूपन देती है, बहुत 5-5 हजार का कूपन देती है, और अपने नीचे के एम्प्लॉइज को कि आप इतना रीडिंग कीजिए हर मंथ, मतलब, और आप नहीं रीडिंग करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा। यू बाय एनीथिंग, आप 4000 का शूज खरीद लीजिए, आप 5000 का शूज खरीद, व्हाटएवर यू विश टू। तो ये सब क्या होता है, ये सब एम्प्लॉइज को रिटेन करने का एक तरीका होता है क्योंकि कंपनी को बहुत नुकसान होता है जब कोई ट्रेंड बंदा निकल जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, फिर से उसका रिक्रूटमेंट का खर्च, हम उसको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में पढ़ाएंगे प्रॉब्लम क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, obviously if you're paid in a good manner, you will be motivated to work in that organization. Next, it results in good industrial relations. what is industrial relation? Anybody can guess? Guess करो, what is industrial relation? इंडस्ट्री में जो रिलेशन है उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन मींस, मोटा मोटी ये समझो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन होता है वो दैट इज अ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है ताकि लोग साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड रहें, उनमें ग्रीवेंस कम रहे, कॉन्फ्लिक्ट कम हो, और both employer and employee should work towards higher productivity and efficiency and effectiveness of the organization. ठीक, मैंने तुमको नैरो सेंस में समझा दिया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या मतलब होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशनशिप दैट अराइजेस आउट ऑफ द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपका किसी बाहर वाले से अच्छा रिलेशन है किसी एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉय नहीं है, उसको इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं कहते। एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो रिलेशन बना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। और ये हम नैरो सेंस में बता दिए क्योंकि आपको डीप नहीं जाना है, ये पूरा का पूरा एक एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इसमें सारी चीजें हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में अब ब्रॉड सेंस में वो भी आता है, वेज बोर्ड है, जो झगड़ा सुलझाती है वो भी बोर्ड है, ग्रीवेंस सेटलमेंट मशीनरी है, ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन में आता है। मतलब हार्मनी बना के रखिए, जो लोग काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयर है दोनों के बीच में हार्मनी बनी होनी चाहिए, किसी तरह का तालमेल बना होना चाहिए और पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए काम करने का। आपने बहुत सुना होगा कि ये आपने लोगों से कंप्लेंट सुना होगा कि पैसा अच्छा देता है कोई कंपनी पर वर्क कल्चर अच्छा नहीं। इसका क्या मतलब होता है? हो सकता है आपका मैनेजर अब्यूसिव हो सकता है कि आपकी कोई वैल्यू ना हो, आप काम कर रहे हैं बट यू हैव नो वर्थ इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जॉब की सिक्योरिटी ना हो, या फिर मैनेजर डज नॉट ट्रीट यू द वे ही शुड ट्रीट हिज सबऑर्डिनेट्स, राइट? तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो अब इस पे काम कर रही है एंड दे आर मेकिंग एवरी एफर्ट्स टू maintain harmony in the organization. Next point. Obviously, if your manager compensation package is good, you are more satisfied, more motivated, and you'll be willing towards making
more of your contribution towards the organization. Okay? Wait for 2 minutes. People have joined today, no? मैम 14 ना है Okay. Write down the next point. Objectives of compensation management. Number 1, external equity. Number 2, internal equity. Number 3, legal compliance. Number 4, cost control. Number 5, motivation and satisfaction. Number 6, right now. Six, to obtain, engage, retain employees. Six, to obtain, maintain, and retain employees. Okay. Done, online students? Yes, Have you written? Yes, ma'am. Should I start explaining the points? Anyone who has not written? Fine. If everyone has written, let's start explaining the points. External equity. 13 points. क्या लिखा है? Objectives of compensation management. मतलब हम compensation management को किस किस पर्पस से करते हैं? इंपॉर्टेंस तो आपने समझ लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका कारण क्या है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट को सही से करने का, आप समझिए। क्या देखिए, should I erase the points? You tell me the points, otherwise they will not be able to see the board.
एक्सटर्नल इक्विटी बता रहे हैं। इक्विटी से क्या समझते हैं? रूट वर्ड क्या हो सकता है इसका? इक्वल, इक्वल बराबर। अब एक एग्जांपल से समझिए। से फॉर एग्जांपल सिस्टम इंजीनियर एक पोस्ट है आईटी में, ठीक है। जनरली कैंपस हायरिंग जब होती है या वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी होता है, कैंपस हायरिंग से मोस्टली जब आईटी कंपनीज ले जाती है तो वो इस पोस्ट के लिए ले जाती है, सिस्टम इंजीनियर। सपोज करिए इंफोसिस है, टीसीएस है और सीटीएस है, ये तीनों आईटी की राइवल्स हैं, ठीक। सिस्टम इंजीनियर को इंफोसिस अपने यहाँ 30,000 पेमेंट करती है। 30,000 स्टैंडर्ड सिस्टम इंजीनियर के लिए यहाँ पर सैलरी है, ठीक। अब आप ये बताइए, अच्छा पहले आप ये जानिए कि किसी भी पोस्ट का या कोई भी जॉब की सैलरी कैसे बनती है, कैसे ये डिटरमिन किया जाता है कि इस पोस्ट के लिए ये सैलरी सुटेबल है। कोई मापदंड होगा, कोई इंडेक्स होगा ये चीज समझाने का। ऐसे कैसे सैलरी के लिए बना दिया जाता है कि आईएएस ऑफिसर की सैलरी इतनी होनी चाहिए, कैसे एक जनरल मैनेजर की सैलरी इतनी होनी चाहिए, एक मैनेजमेंट ट्रेनी की सैलरी इतनी होनी चाहिए, या एक सुपरवाइजर की, एक क्लर्क की सैलरी इतनी होनी चाहिए। There is a word in HR which is known as job evaluation. इससे किसी भी जॉब का नेट वर्थ निकाला जाता है। What is the worth of an organization? Worth of a job. कोई जॉब है, उसको उसका वर्थ कितना है? वर्थ both in monetary terms and in contribution to the organization. क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर जॉब इक्वली इंपॉर्टेंट होता है? नहीं होता है। एक स्वीपर का जॉब क्या उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना एक मैनेजर का जॉब होगा? तो कॉम्पेंसेशन डिफर करेगी कि नहीं? लेकिन स्वीपर तो बहुत आसान एग्जांपल दे दिया, आपको पता है कि स्वीपर एक नीचे तबके का चीज है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसमें आए गए भी लोगों को रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक जनरल मैनेजर और एक सीनियर मैनेजर, इन दोनों के सैलरी में डिफरेंस होता है कि नहीं? क्यों होता है डिफरेंस? तो ज्यादा काम करता है ये, वो नॉट इन जनरल टर्म्स, बी स्पेसिफिक। क्योंकि इस दोनों पोस्ट का, इस दोनों जॉब का, जनरल मैनेजर के जॉब का और सीनियर मैनेजर के जॉब का, उस जॉब का, उस पोजीशन का जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है। इस जॉब इवैल्यूएशन में का तरीका है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है और क्वालिटेटिव मेथड होता है। इन दोनों में से जिस भी तरीके से किया जाए, तो क्वालिटेटिव मेथड में जैसे ग्रेड पे वगैरह है, आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड पे लगता है, और बाकी पॉइंट रैंकिंग मेथड है या और भी जो भी मेथड्स है, आपको डिटेल नहीं जाना है। तो जॉब का इवैल्यूएशन किया जाता है, उसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है कि इसमें मेंटल स्किल कितनी रिक्वायर्ड है, सेफ्टी एंड हैजार्ड कितना है, और ऐसे ऐसे करके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हम ध्यान में रख करके ये बनाया जाता है जॉब इवैल्यूएशन में, इस जॉब का नेट वर्थ कितना होना चाहिए। अब आगे बढ़िए। What happened? Next is CTS, Infosys, and this example I was giving you, CTS, Infosys, and TCS. Okay. Take for example, for a system engineer, this job is evaluated. 30,000 मिलना चाहिए, नहीं मिलना, 30,000 मिलना चाहिए,
क्या TCS 40,000 दे सकती है? एक आध घंटा तो लाइएगा तो रहेगा ही ना। अगर ये देगी तो इसके कॉस्ट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। या इसीलिए बिना सोचे बिना लॉजिकल आप सैलरी नहीं बढ़ा सकते हैं। ये आसान नहीं है, किसी कंपनी की बहुत बड़ी HR पॉलिसी में आती है, आप सैलरी नहीं बढ़ा सकते हैं किसी का भी। लेकिन अगर 30 स्टैंडर्ड है तो CGS अगर 20 देगी तो क्या लोग यहाँ आएंगे? नहीं। सो एक्सटर्नल इक्विटी का यही मतलब होता है कि सिमिलर पोजीशन पे, जैसे सिस्टम इंजीनियर का पोस्ट इन्फोसिस में है, CTS में है, विप्रो में है, आपका सैलरी 19-20 ही होना चाहिए। बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से आपकी सैलरी एट पार होनी चाहिए, तभी आप कंपटीशन में स्टैंड करेंगे। वरना विप्रो जाएगा तो कोई बैठेगा ही, ये पैसा नहीं दे रहे उसके जितना हम TCS वाले में बैठेंगे, यही होगा ना। एक्सटर्नल मतलब बाहर की इक्विटी, यानी बाहर मार्केट में सिमिलर जॉब पोजीशंस में जो है उसके हिसाब से आपका कॉम्पेंसेशन डिफाइन होना चाहिए। और सिमिलर थिंग्स होल्ड फॉर, जैसे सिस्टम इंजीनियर के लिए भी, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी, मैनेजर के लिए भी, क्वालिटी में तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, तो उनके लिए सिमिलर होना चाहिए कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम हो, लगभग सेम हो। यही रीजन है कि कंपनीज अपना बेनिफिट्स बढ़ाने लगी है। पर्क्स सुने हैं, इस कंपनी का पर्क्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए बढ़ाती है, क्योंकि वो सैलरी नहीं बढ़ा सकती है। सैलरी बढ़ाना उसके लिए बहुत बड़ा कॉस्ट इनकर होता है, तो वो पर्क्स बढ़ाती है ताकि वो रिटेन कर सके एम्प्लॉइज को। पर्क्स का लालच रहे, और वो सैलरी तो बराबर ही मिलेगी, लेकिन हम पर्क्स ज्यादा देंगे तो एम्प्लॉइज मेरे यहाँ काम करेंगे, हमारे यहाँ रहेंगे। और जनरली पर्क्स वगैरह क्या होता है कि जो हायर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सिमिलरली इंटरनल इक्विटी, सेकंड पॉइंट इज इंटरनल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी का क्या मतलब है कि आपका जिस तरीके का जॉब का हायरार्की है अंदर, सैलरी उसके हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर से ज्यादा सैलरी मिल रही है, ये हंसने की बात नहीं है, तो कोई छोटी बात लगती है, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन की का जब कॉम्पेंसेशन डिजाइन होता है तो ये सारी चीजें एरर में आती हैं, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंटरनल इक्विटी पढ़ रहे हो ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा होता है, there have been, if you go into case studies, there have been organizations which were not able to plan their salary properly and they had to shut down. Okay, next point, legal compliances. Salary में जब आप private sectors are exempted from this, वहाँ पे इतना नहीं है। गवर्नमेंट का जब रिक्रूटमेंट निकलेगा तब आप एडवर्टाइजमेंट देखिएगा, देखा होगा ना कि this many seats reserved for SC, ST, women and physically handicapped. आप बिना रिजर्वेशन किए हुए ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं निकाल सकती है। रिजर्वेशन सिस्टम क्योंकि हमारे संविधान में है, ये गवर्नमेंट का रूल है, इसलिए आपको पोस्ट उसी हिसाब से निकालना। तो इन अ वे क्या होता है, कॉम्पेंसेशन पैकेज बनाने में हमको इतना रिक्रूटमेंट चाहिए, फिर गवर्नमेंट देखेगी बैकलॉग कि आपने इस कैटेगरी के लिए इतने पोस्ट निकाले कि नहीं निकाले, ये गवर्नमेंट का रूल है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो इन अ वे लीगल कंप्लायंस, ये सब चीजें जरूरी है। प्लस कॉम्पेंसेशन डिफाइन करते समय हम उस दिन पढ़ाए थे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि आपको मिनिमम वेज तो देना है, आप उससे ज्यादा दीजिए ठीक है, लेकिन कम नहीं दे सकते। और भी चीजें ये ESI देना है आपको, PF देना ही है आपको, ग्रेजुटी देना ही आपको, ये लेबर लॉज में आता है, इसको फॉलो करना है। तो कॉम्पेंसेशन में तो ये सब आता है ना। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, cost control. Obviously compensation is a big thing that calls for cost control of an organization. If you do not plan your compensation properly, it can lead to heavy cost on your organization. Even government organizations में voluntary retirement देके, voluntary retirement की scheme लाके लोगों को resign करवाया। This was a decent way of making people out of the organization, क्योंकि उनको salary देने में खर्च बहुत हो रहा था। Next, motivation satisfaction बता चुके हैं। Next, प्रोक्योर करने के लिए आपको सैलरी पैकेज अट्रैक्टिव लगेगा तो ही आप तभी वो इंडिविजुअल्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। मेंटेन करना मतलब मेंटेनेंस में बहुत कुछ आता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये वो कॉम्पेंसेशन का ही पार्ट है वो, ठीक है।
and retain. I told you benefits पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है? Let's end the class here. Next class we will study compensation management in more details because you are studying payroll management. That's why.